So hello everyone and welcome to Unacademy, and this is Shubhdeep Datta, your Unacademy educator, and today we will continue with the isomerism thing, and let me give you a little brief about the Unacademy first. Okay. So guys, you are at the target top 100 ranks MST CET 2021. Okay. So the classes will go on live from Monday to Sunday for full preparation, and you will have chemistry, physics, mathematics and biology. You can see the chemistry timings is from 1 p.m. then again at 9 p.m. and same goes for guys. I'm Shubdeep Datta and I am an alumni of National Institute of Technology Durgapur. I have some 5 plus years of teaching experience and I teach chemistry. I specialize in teaching IIT, JEE and NEET along with various state entrance examinations such as the Maharashtra Common Entrance Test. Okay. So guys, you can also crack Maharashtra CET with India's largest learning platform, that is Unacademy, only if you get the plus subscription and access to unlimited live and recorded courses from India's best educators. So guys, please get the plus subscription. Also, the Unacademy learning app, in the Unacademy learning app you can download the Unacademy learning app from the Google Play Store, and you can also join us on the Telegram app by downloading it from the Google Play Store, and then you can type the link, that is the crack Maharashtra CET link mentioned here in on the URL, and then you can join the group, right? So these are the monthly plans. So you can see month plan would amount to 2700 rupees and 24-month plan would amount to 21,600 rupees, right? So 21,600 rupees, it's all you have to pay for 24 months for continuous study without any interruption. So guys, please do it today, and you can see it is only 900 per month if you go for the 24-month plan. Also, if you use this code, Shubdeep, you can get 10% extra discount if you use this code. So guys, don't miss out on this code, and let's see what we were dealing with. We were dealing with आइसोमेरिज्म. हम लोग आइसोमेरिज्म देख रहे थे. सो हम लोग आ जाते हैं इसी पे. लेट्स स्टार्ट. आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ड्रॉ ऑल द साइक्लिक structures of C6H12, so how can we do it? How can we draw all the cyclic structures of C6H12? So we can do it like, so the first step टू सॉल्विंग इट, हम लोग को ध्यान रखना है केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं C6H12 फार्मूले से. कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहला स्टेप होता है बेटा कि DU निकालें हम लोग. अगर हम लोग DU निकाल लेते हैं तो हम लोग उसके बाद समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितने साइकिल मिनिमम हम रख सकते हैं. ठीक है, तो DU देखें कितना आता है. DU क्या हो जाएगा? C+1 माइनस H+X-N होल डिवाइडेड बाय 2. तो C की वैल्यू है 6 + 1 माइनस H कितने हैं? 12 + 0 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय 2. तो 7 माइनस 12/2 दैट इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1. तो अगर आपका DU का वैल्यू 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हो सकता है या तो एक साइकिल हो सकती है. ठीक है.
अगर हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हो तो हम देखेंगे कि हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स तो रखने ही हैं, है ना। तो हमारे पास बस ऑप्शन है कि एक पाई बॉन्ड रखो या एक साइकिल रखो। तो हम साइकिल को रखेंगे, पाई बॉन्ड को नहीं रख सकते, है ना। इन दोनों में से कोई एक ही रख सकते हैं। तो देखिए ज़रा, हमारे पास C6H12 है जिसका DU कितना है, 1 है। और DU 1 होने का मतलब हमें ऑल साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो हमें DU 1 को कहाँ पे यूज़ करना है, केवल साइकिल्स में, ठीक है ना। ओनली साइकिल्स शुड बी ड्रॉन इन प्लेस ऑफ C6H12। ओके, तो पहला जो होगा, हम लोग देखते हैं कि 6 मेंबर्ड साइकिल कौन कौन से हैं। 6 मेंबर्ड साइकिल्स कौन कौन से हैं। 6 मेंबर्ड मतलब ये एक हो सकता है, दैट्स इट। सारे कार्बन तो हमने यहीं पे यूज़ कर दिए, 1 2 3 4 5 और 6। सारे जब कार्बन हम यहीं पे यूज़ कर लेंगे और एक ही साइकिल हम बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा 6 मेंबर्ड साइकिल और कोई नहीं बनेगी, है ना। हम ट्राई करते हैं सेकेंड में अब 5 मेंबर्ड बनाने के लिए। 5 मेंबर्ड मतलब साइकिल जो है वो कुछ साइक्लोपेंटेन होगा। साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन यूज़ कर लिया हमने, और एक कार्बन बचा है जो कि मिथाइल की तरह साइक्लोपेंटेन के ऊपर लग जाएगा। इसके अलावा इसका और कोई ओरिएंटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम मिथाइल को शिफ्ट करके इस पोजीशन पे रखते हैं तो भी बात सेम होगी। तो हम लोग अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे हम लोग आते हैं कि 5 नहीं, अब हम क्या करते हैं, 4 मेंबर्ड रिंग लेते हैं। 4 मेंबर्ड रिंग लेते हैं। तो 4 मेंबर्ड रिंग कुछ इस तरह की होगी, ठीक है ना। अभी 4 मेंबर्ड रिंग के बाद में टोटल कार्बन तो 6 होने चाहिए ना, तो यहाँ पे 4 कार्बन हो गए। तो हम लोग इथाइल को ले लेते हैं, एक है इथाइल। तो एक हमने सब्स्टिट्यूएंट ले लिया इथाइल, तो इसका एक बन गया। अब इथाइल को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते थे कि एक 4 मेंबर्ड रिंग बनाते और 2 मिथाइल ले लेते हैं। तो 2 मिथाइल हम एक सिंगल पॉइंट पर भी ले सकते हैं, या तो हम अलग अलग पॉइंट पर भी ले सकते हैं। तो एक मिथाइल जैसे यहाँ दोनों को एक कार्बन पे ही दे दिया, तो दूसरा जैसा भी बनाएंगे एक पॉइंट पे वो सेम रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे मिथाइल ले लें, एक हो सकता है यहाँ ले ले अलग से, तो ये 2 मिथाइल हो गए, ठीक है ना। अब 2 मिथाइल की पोजीशन अगल बगल भी हो सकती है, 2 मिथाइल की पोजीशन ऑपोजिट पर भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 स्ट्रक्चर बन गए कि नहीं बन गए, है ना। अब हम लोग देखते हैं 4th नंबर पे कि 6 4 6 5 4 तो हो गए। अब 3 का देखते हैं। 3 मेंबर्ड सबसे छोटे साइकिल्स होते हैं, मतलब इसके बाद हम 2 मेंबर्ड साइकिल नहीं बना सकते। तो 3 मेंबर्ड साइकिल में ये तो कॉमन रहेगा, ये तो कॉमन रहेगा। और हमें क्या करना होगा, और हमें 3 लेने होंगे। तो सबसे पहले तीनों जो हैं वो एक ही पॉइंट पे ले लेते हैं, ये, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि प्रोपाइल तो ले लिया, अब हम इथाइल और मिथाइल में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक साइकिल है, तो हम एक मिथाइल ग्रुप ले लें और एक इथाइल ग्रुप ले लें। अब मिथाइल और इथाइल हम एक पॉइंट पे भी रख सकते हैं, या तो मिथाइल और इथाइल को हम अलग अलग पॉइंट पे भी रख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पर भी हम लोग इस तरह से रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हमने सबसे पहले इथाइल लिया, प्रोपाइल लिया। प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, है ना। तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन को ब्रेक करने का मतलब है इथाइल और मिथाइल, और इसको भी फर्दर ब्रेक करने का मतलब है 3 मिथाइल। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं और 3 मिथाइल में से 2 मिथाइल एक पे रखते हैं और 1 मिथाइल अलग से बनाते हैं। ऐसा भी बना सकते थे, है ना, ऐसा भी बना सकते थे, ठीक है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि
ये तीनों मिथाइल जो है वो अलग अलग रखें, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्यों? ठीक है। और एक और, चलो हम इसमें एक और बना सकते हैं, पता है इसका, देखो ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े हैं ना, जैसे ये है ना 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है ना यहाँ पर। तो हम ऐसा कर सकते थे कि इसको बीच में से देखें ज़रा, ये बीच में से इसको अगर जोड़ दे तो इसके जुड़ने के पॉइंट 2 हैं, एक तो एंड से जुड़ सकता है, एक सेंटर से भी जुड़ सकता है। तो अगर सेंटर से जुड़ेगा तो एक अलग तरह का साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड बनेगा, है ना। तो इसके अलावा हम और कोई नहीं बना पाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? C6H12 कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है, टोटल 12। टोटल 12 स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, अगर हम बोले कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd स्ट्रक्चर है, 4th स्ट्रक्चर है, 5th स्ट्रक्चर है, 6th स्ट्रक्चर है, 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th स्ट्रक्चर है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से कि ये जो 1 होगा ना, ये CI होगा रेस्ट का, CI मतलब चेन आइसोमर। ऑब्वियसली इसमें जो साइकिल है उसमें 6 कार्बन है, बाकी किसी साइकिल में भी 6 कार्बन नहीं है। तो ये जो 1 है वो हमेशा बाकी सबका चेन आइसोमर होगा कि नहीं होगा? जो 2 है वो भी सबका चेन आइसोमर होगा रेस्ट का, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग और किसी की नहीं है ना, 5 मेंबर्ड रिंग और किसी की नहीं है ना। तो वैसे अगर इसको देखो 3 जो होगा वो भी सबका चेन आइसोमर होगा एंड सो ऑन। तो कोई भी यूनिक मेंबर ले लो तो उसमें या तो साइड चेन या तो पेरेंट चेन का होगा, मतलब डिफरेंस आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? चेन आइसोमर कहलाएगा बाकियों का, ठीक है। सेकंड को ले लेते हैं। और क्या बोल सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या ये कह सकते हैं हम, इन दोनों को देखो, मेन रिंग जो है वो साइक्लोप्रोपेन की है इन दोनों में, है ना, और जो साइड चेन है वो तीनों मिथाइल है। तो मतलब पेरेंट चेन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पेरेंट चेन का इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क आ रहा है मिथाइल की पोजीशन में। यहाँ पे मिथाइल की पोजीशन है 1,1,2 और यहाँ पे पोजीशन है 1,2,3। तो मिथाइल की पोजीशन में फ़र्क आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या रिलेशन रखते हैं? पोजिशनल आइसोमर्स। क्या इतना समझ गए आप लोग? क्या इतना समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट, आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये कहता है कि व्हेन टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different nature of functional group, same molecular formula but different nature of functional group। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो सेम होती है वो क्या होती है भाई? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना ही चाहिए अगर आइसोमर है तो, ठीक है। जो DU है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वो भी कैसा होना चाहिए? सेम होना ही चाहिए, नहीं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है तो ऑब्वियसली DU तो सेम होएगा ही, है ना। और साथ ही साथ नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो डिफरेंट होना चाहिए,
अगर ऐसा नहीं हो रहा है, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट नहीं हो रहा है तो उसको फंक्शनल आइसोमर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो तो ये पहली बात तो थोड़ा अनकॉमन आइसोमेरिज्म है। अनकॉमन आइसोमेरिज्म इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो दोनों कंपाउंड्स है वो एंटायरली डिफरेंट है ना। बोथ आइसोमर्स आर एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड। क्या बात सही सही बोली है। यहाँ पे दोनों आइसोमर्स जो है वो एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड है ना। तो देखे ज़रा यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम अल्कोहल की बात करें CH3CH2OH, तो जहाँ पे ये OH ग्रुप आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो अल्कोहल फैमिली का अपना कुछ प्रॉपर्टी होता है, अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें CH3CH3 की, तो ये क्या होगा, ये होगा ईथर, है ना। ये क्या होगा, ईथर। ये है लिक्विड के फॉर्म में और ये है गैस के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती हैं, है ना। तो अल्कोहल अपना एक फंक्शनल ग्रुप है ना, और ईथर जो है वो अपना एक फंक्शनल ग्रुप है। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप और ये ईथर फंक्शनल ग्रुप। बट अगर देखा जाए तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C2H6O, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C2H6O। सही बात है कि नहीं। तो ये दोनों एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड है क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, ऑल्दो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड मतलब फंक्शनल ग्रुप ही चेंज अगर हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। वो क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ सेट्स होते हैं, मैं आपको वो सेट्स बताता हूँ। जैसे कि फंक्शनल आइसोमर्स का सेट कहाँ पे मिलेगा, फंक्शनल आइसोमर्स का सेट देखो कहाँ कहाँ पे मिलेगा। एक तो अगर अल्कोहल है तो वो ईथर के साथ में फंक्शनल आइसोमर बनाता है, ठीक है ना। दूसरा सेट है थायो अल्कोहल अगर होगा तो वो थायो ईथर के साथ में फंक्शनल आइसोमर बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल थायो अल्कोहल का मतलब हुआ CH3CH2SH ग्रुप को थायो अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर हम थायो अल्कोहल नहीं थायो ईथर बना रहे हैं तो दो अल्काइल ग्रुप एक सल्फर के साथ में जुड़ी होंगी, इसको बोलते हैं थायो ईथर, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, थायो ईथर। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जैसे कि मान लो CH3COOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स के साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स के साथ में, इसको बोलते हैं एस्टर, एस्टर के साथ में फंक्शनल आइसोमेरिज्म रखते हैं। एस्टर एक डिफरेंट कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक डिफरेंट कंपाउंड है। तो मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड में COO और एस्टर में COO कॉमन होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग COO इस तरफ H कर देते, इस तरफ H कर देते हैं तो ये एस्टर बन जाता है, और COO के बाद में CO के बाद में अगर हम H कर देते तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और COO के बाद में अगर हम कोई अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो वो एस्टर बन जाता है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर आपस में क्या रखते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ इस तरह जो है हम लोग, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, जैसे कि CH3
सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ एच, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर की बात करते हैं तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, तो एक और सी एच थ्री यहाँ बढ़ा दें क्या, यहाँ पे एक और सी एच थ्री मैंने बढ़ा दिया, तो सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सी एच थ्री यहाँ से हमने एक सी कम कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पे एक सी बढ़ाना है, तो सी एच थ्री सी ओ ओ, उसके बाद सी एच थ्री कर दिया, तो देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एस्टर, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे। ठीक है, और इसको इन दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड ओ है ना, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं। हाँ कहाँ थे, ईथर पार्ट को इधर कर दें। ओके ओके, ऐसा कर सकते हैं ना कि ये जो डबल बॉन्ड ओ है इसको फर्स्ट कार्बन पे रखें, तो यहाँ पे एच आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कार्बन का एक और पार्टिकल डबल बॉन्ड ओ, और हम क्या करते हैं कि इस कार्बन के साथ में इसको यहीं पे जोड़ देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो मतलब सी एच थ्री को यहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ को फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट किया, ओ को इधर शिफ्ट करने वाले इसीलिए सी एच थ्री को इधर शिफ्ट कर दिया सी एच टू के जस्ट बाद में, है ना, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओ एच ले लें, तो देखो ज़रा यहाँ पे इसको बोलेंगे कीटो हाइड्रोक्सी, या तो हाइड्रोक्सी कीटो या तो हाइड्रोक्सी एल्डो, ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये एल्कोहलिक ग्रुप है, तो जब एल्डिहाइड के साथ में अल्कोहल रहेगा तो उसको हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज फंक्शनल टू एस्टर, मतलब इट इज अ फंक्शनल आइसोमर टू एस्टर एंड इट इज अ फंक्शनल आइसोमर टू एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी ग्रुप्स एज वेल, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। देख लो इन तीनों में ही, इन तीनों में ही तुम्हारा जो भी फंक्शनल आइसोमर है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो सेम है। क्या ये बात क्लियर है, तो इस तरह से भी हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। और थोड़े सेट लेते हैं, जैसे कि सी एच थ्री सी ओ एन एच टू है ना, तो हमें ध्यान रखना है इसका डी यू कितना है, इसका डी यू है 1, तो हमें बस डी यू को मेंटेन करके रखना है, नंबर ऑफ कार्बन मेंटेन करके रखेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेंटेन करके रखेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन करके रखेंगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने आप सेम आएगा। फॉर एग्जांपल 2 कार्बन के साथ में हम डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन को अगर जोड़ दें, 2 कार्बन के साथ में अगर डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन को जोड़ दें, नाइट्रोजन के साथ हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो ऑक्सीजन के साथ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो 2 कार्बन 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, और तो बाकी जहाँ पे भी हाइड्रोजन बचे हैं वो लगा देते हैं। देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2NOH कितने 1 2 3 और 4 5, C2NOH5, तो यहाँ पे भी देखें 1 2 3 4 5 C2NOH5, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो हमेशा ध्यान में रखना है ना कि DU को 1 करना होगा, मतलब DU जो है वो देखना होगा, दोनों कंपाउंड में DU सेम रखा होगा, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम रखेंगे, हाइड्रोजन अपने आप सेम आ जाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर ये एमाइड है, ये ग्रुप क्या होता है CONH2 एमाइड, तो ये ग्रुप क्या है ऑक्साइम है, ठीक है ना, ये ग्रुप क्या है ऑक्साइम है ना। अगर हम लोग और देखें कि प्राइमरी एमीन जो है, ठीक है, अगर वो कुछ इस तरह क्या है, 3 कार्बन की चेन का मान लो मैंने प्राइमरी एमीन बनाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 H2 है ऑब्वियसली, ठीक है ना,
तो यहाँ पे अगर हम लोग कार्बन चेन लेंथ को कम कर देते हैं, यहाँ पे एक सी ले लेते हैं, यहाँ पे दो सी ले लेते हैं, और यहाँ पे फिर एक एच लेना पड़ेगा, यहाँ पे फिर एक एच लेना पड़ेगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है ना। तो एमीन्स प्राइमरी डिग्री और सेकेंडरी डिग्री के एमीन्स जो होते हैं ना, वो दोनों फंक्शनल आइसोमर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक सेकेंड में आता हूँ। ठीक है। तो प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। सिमिलरली जो टर्शरी अमीन है ना, जैसे कि यहाँ पे 3 कार्बन है ना, तो तीनों वैलेंसी एक एक कार्बन से जोड़ दें, तो ये तीनों आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखेंगे, और एमीन्स की डिग्री अगर चेंज करोगे तो फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे वो। ये थोड़ा अलग सा, इसीलिए इसको नोट कर ले। नेक्स्ट, अच्छा बताओ, यहाँ पे मैंने क्या किया, CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, OH जोड़ दिया। हम ऐसे सोच सकते हैं इसको कि यहाँ पे हम क्या करें, CH2OH जोड़ दें, चलेगा क्या? ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर होंगे क्या? इन दोनों का आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा? एकदम होगा। देखो कैसे, इसका डी कितना है, इसका डी भी है 4, एक साइकिल है, 3 साइकिल के अंदर पाई बॉन्ड है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, और ऑब्वियसली एक रिंग तो है ही, तो 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4, तो इसका भी डी कितना हो जाएगा, 4। इसका भी डी कितना हो जाएगा, 4। तो डी दोनों का सेम है। चलो अब देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन है 6 यहाँ पे, और 1 यहाँ पे, तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे सेम है दोनों में। नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, 1, और यहाँ पर भी 1, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी सेम है दोनों में। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन उसके बाद अपने आप से ही बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, एक एरोमेटिक अल्कोहल है। एरोमेटिक अल्कोहल है। एरोमेटिक अल्कोहल किस लिए? क्योंकि एरोमेटिक बेंजीन रिंग के साथ में फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा है ना। लेकिन यहाँ पर ये एलिफैटिक अल्कोहल है। एलिफैटिक अल्कोहल इसलिए क्योंकि यहाँ पे एलिफैटिक मतलब सिंगल चेन के साथ में, एलिफैटिक चेन के साथ में, है ना, बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्टली OH नहीं जुड़ा है, बीच में कार्बन है और उसके बाद OH जुड़ा है। तो इसका मतलब ये एक एरोमेटिक अल्कोहल है और ये एक एलिफैटिक अल्कोहल है। तो जब तुम्हारे रिंग का नेचर मतलब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज होता है ना, एक एरोमेटिक और एक एलिफैटिक होता है, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है, फंक्शनल ग्रुप का चेंज आया है। क्या ये बात क्लियर है सभी को, है ना। तो अगर कोई एक एरोमेटिक अल्कोहल है, उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का एक अगर एलिफैटिक अल्कोहल होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों आपस में क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर हैं।
ठीक है, दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर हैं। तो सिमिलरली सल्फोनिक एसिड का देख लेते हैं, CH3 CH2 S डबल बॉन्ड O यहाँ पे OH, तो इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। हम क्या करेंगे, O की डबल वैलेंसी को ना अब एक तरफ से इस रिंग को छोटा कर देंगे, इसको केवल CH3 रखते हैं, और यहाँ पे S डबल बॉन्ड O के साथ में, यहाँ पे O के साथ में H नहीं, O के साथ में यहाँ से जो एक कार्बन कम किया है ना, यहाँ पे एक कार्बन लगा देते हैं। तो देखो दोनों का DU सेम है, इसका भी DU सेम है। DU कितना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड इधर एक पाई बॉन्ड इधर, तो 2 पाई बॉन्ड दोनों तरफ। कार्बन कितने, 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 3, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दोनों का सेम ही होगा। तो इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एस्टर। सल्फोनिक एसिड और सल्फोनिक एस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम लोग बोलें कि नाइट्रो ग्रुप जो है ना, नाइट्रो ग्रुप जो है और नाइट्राइटो ग्रुप जो है, जैसे कि CH3ON डबल बॉन्ड O, ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का DU भी क्या है, सेम है। DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इस पूरे कंपाउंड में केवल एक पाई बॉन्ड है, इस पूरे कंपाउंड में भी केवल एक पाई बॉन्ड है। तो नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो जो है वो नाइट्रो जो है वो नाइट्राइटो के साथ में क्या रखेगा, आइसोमेरिज्म रखेगा, ठीक है। ठीक है, एक और देखते हैं, साइनाइड का देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N को बोलते हैं साइनाइड ग्रुप, है ना, ये है मिथाइल साइनाइड, है ना, ये मिथाइल साइनाइड। और अगर CH3 के साथ में N की तरफ से जुड़ रहा है, N की तरफ से ये ग्रुप जुड़ रहा है, तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ओवरऑल तो न्यूट्रल ये भी है, ओवरऑल न्यूट्रल ये है, ये भी है, तो इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड ग्रुप, ठीक है। बताओ ये दोनों आपस में कैसा रिलेशन रखते हैं, ये दोनों आपस में कैसा रिलेशन रखते हैं। मिथाइल ग्रुप है, उसके बाद O है ये, और एक और मैं बनाता हूँ, बताओ। क्या ये दोनों आपस में, इधर से देखते हैं, इतना पोर्शन तो कॉमन है दोनों में, इतना पोर्शन तो दोनों में कॉमन है। इसके बाद क्या है कि रिंग के अंदर ऑक्सीजन और 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 कार्बन रिंग के अंदर है और एक जो है वो क्या है, ऑक्सीजन OH के टर्म्स में ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे OH है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, एलिफैटिक अल्कोहल हुआ, ठीक है। और ये क्या है, ये है एरोमेटिक ईथर। तो बेसिकली एक ईथर है और एक अल्कोहल है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर।
बताओ ये क्या हुआ, ये एक एस्टर हुआ है ना, CH3 CH2 है ना, COO CH2 CH3, ये एक फंक्शनल, ये एक एस्टर हुआ। तो बताओ ये क्या हुआ, ये हुआ एस्टर नहीं हुआ। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, उसके बीच में अगर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो तो ये तो कीटो ग्रुप हुआ है ना, कीटो, ये क्या हुआ, कीटो ग्रुप। और अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, जैसे कि ये और ये, तो इसको बोलते हैं ईथर ग्रुप, तो ये है कीटो ईथर ग्रुप। यहाँ पे दो फंक्शनल आइसोमर के जो सिस्टम्स है वो दोनों प्रेजेंट हैं। तो एस्टर का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखें अगर, देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 एंड 5। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 एंड 2, यहाँ पर भी कितने हैं, 1 एंड 2। पाई बॉन्ड कितना है, 1, पाई बॉन्ड यहाँ भी कितना है, 1। तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे, लेकिन एक है एस्टर, दूसरा है कीटो ईथर, तो दोनों क्या कहलाएंगे आपस में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। ठीक है ना, दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी एस्टर विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2 कैन बी मेड। इस फॉर्मूले के एस्टर्स कितने हमें मिलेंगे। देखो एस्टर का मतलब क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O O और यहाँ पर R ग्रुप और यहाँ पर R ग्रुप, मतलब एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम एस्टर की बात करें तो, और ये ऑप्शनल होता है वैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, तो इस ग्रुप का, एस्टर ग्रुप का दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। यहाँ पे कम से कम एक कार्बन होना ही चाहिए, यहाँ पे कम से कम एक कार्बन होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने कार्बन रखने होंगे, यहाँ पे टोटल कार्बन रखने होंगे हमें 3 नहीं 2, 3 कार्बन है ना, एक तो यूज़ कर चुके हैं, 2 कार्बन हम यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से। अब क्या करें कि फिर से बनाते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O। तो इस ग्रुप के मैं पहले ही बता चुका हूँ, एस्टर ग्रुप के टोटल बॉन्ड्स कितने खाली रहते हैं, 2। अगर टोटल बॉन्ड्स 2 खाली हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, एक कार्बन यूज़ कर चुके हैं, तो दूसरे कार्बन में अब यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पे 1 लगाते हैं, तो एक अपने आप कहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे नहीं लगता कि और कोई पॉसिबिलिटी है कि हमने यहाँ पर एक कार्बन तो यूज़ कर लिया, ये तो मैंडेटरी है, तो 2 कार्बन हम इधर यूज़ कर सकते थे, फिर हमने एक इधर भेज दिया, अब एक और इधर भेजेंगे तो यहाँ पे हमें C डबल बॉन्ड O के साथ में यहाँ पे H लगाना पड़ेगा, तो ये ग्रुप एसिड का बन जाएगा। हमें एसिड नहीं, हमें तो एस्टर चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इज मैक्सिमम 2 वी कैन फॉर्म, मैक्सिमम 2 एस्टर्स वी कैन फॉर्म, ठीक है ना। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, आज हम इतना ही करते हैं, एंड टुमारो वी विल मीट इन अ न्यू क्लास। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक महाराष्ट्र CET channel. I am Shubdeep Datta, and please do send us comments on the YouTube section time and again so that we can solve your problems. आप हमें टेलीग्राम ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बस बेल आइकन को प्रेस करना होगा एंड देन आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हमें कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो प्लीज़ hit the bell icon so that every time we make a new video we can send the video to you on the YouTube channel, okay, and we will also send you a reminder. So last but not the least, this is my referral code, this is my referral code. If you use this code, then what will happen, if you use this code, then
what will happen, 10% discount you will get. Okay, thank you.